Hello, my dear friends. Welcome to More Academy. I hope that your holiday of 2 weeks must have been very energetic for you, and you must have now developed your ability for studying on commerce subjects of 11th standard. I hope that you have used this 2 weeks holiday for the purpose of revising all the concepts which I have taught in first two topics. And I hope you have not forgotten anything. Okay, so let us start with the next chapter, that is chapter number 3, that is called as journal. Okay, so the first point which I want to specify is about journal. What is the meaning of journal? Journal is called as the book of prime entry. I repeat, journal is called as the book of prime entry. That means the first entry is going to be always made in the book called as journal. I am repeating again, the first entry is going to be made in the book called as journal. That's why it is called as the book of prime entry. But then how are we going to make the entries in the journal? To make the entry in the journal, it is necessary that we must have the knowledge that the transaction took place. I hope you remember the meaning of transaction. I hope what is the meaning of a ledger account. That is what is known to you. अकाउंट मीन्स मैंने बोला था आपको अकाउंट मतलब क्या है, जैसे स्टोरी में एक्टर वैसे अकाउंटिंग में अकाउंट. अलग अलग चीज़ों के अकाउंट बन सकते हैं, वो पर्सनल रियल नॉमिनल रह सकते हैं, और उसमें हमने उसके अलग अलग रूल्स देखे हुए थे. वो फरालू का पैसे वाले ने कुछ अलग अलग बातें किया था, भूलने गया ना मेरे बच्चों. चलो लेट मी गो हेड नाउ. अगर भूल गए रहोगे तो क्या करना पता है आपको, अपने पास सारा का सारा प्लेलिस्ट रेडी है यूट्यूब पे, उसको बराबर से चेक करना है. चलो फिर लेट मी कंसिडर दैट आपको सब कुछ याद है और अभी आप मेरे साथ पढ़ाई करने को तैयार हो. तो फिर ये जो अकाउंट हमारे सामने आ रहे हैं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हमारे सामने आ रहे हैं, उनको मैं रिकॉर्ड करने को जाने वाला हूँ. नाउ ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट मस्ट बी हैपनिंग एक्चुअली स्पीकिंग. दैट इज इट पॉसिबल दैट अ ट्रांजेक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस exactly in front of accountant? Think about it. If you want, close your eyes and think about that situation. That whenever the transaction is happening, the accountant is sitting in front of that particular situation. He is noting down exactly what is happening. He is witnessing it and then he is recording it. Is it really possible for the accountant to be always available everywhere, wherever transactions are happening? There may be a separate purchase department in case of a large company. There may be a separate sales department. A sales department may have different sales manager according to different areas, and sales manager may have assistant sales managers, and then those sales managers will have different salesmen working under them. These salesmen may be going to different places, different locations for the purpose of actually making the sale. So the salesmen are going to the customer's place. सेल्समैन कहाँ पे जा रहा है? सेल्समैन कस्टमर के प्लेस पे जा रहा है, अलग अलग जगह पे जाके सेल्स कर रहा है. अपना अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, सब जगह पे अपना ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है. कहाँ पे कस्टमर अपने ब्रांच में आके सेल्स कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे सेल्समैन कस्टमर के घर पे जाके सेल्स कर रहे हैं. हमारा परचेसेस हो रहा है. हमारे कोई कोई लोग अकाउंटेंट के डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे, एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे. इसमें से बहुत सारे लोग शायद ऑफिस के काम के लिए इधर उधर अलग अलग ऑफिस में जाते रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते रहेंगे. तो आने जाने के लिए उन्होंने ट्रैवलिंग का खर्चा किया रहेगा. शायद उनको ऑफिस के काम के सिलसिले में किसी और जगह पे 2-3 दिन रहना पड़ा रहेगा. उनको वहाँ पे होटल का बिल भरना पड़ा रहेगा. उन्होंने वहाँ पे खाना खाया रहेगा, शायद खुद के लिए, शायद किसी क्लाइंट को भी उन्होंने खाना खिलाया रहेगा. तो उनके बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं. जहाँ जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये खर्चे हो रहे हैं, वहाँ सब जगह पे अकाउंटेंट को प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक सेल्समैन जाएगा और उसके साथ में एक अकाउंट्स असिस्टेंट भी जाएगा देखने के लिए कि वो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहा है. इट इज़ इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट डू दैट पर्टिकुलर थिंग. अपना ऑफिसर किसी जगह पे चला गया होटल में रहने के लिए, क्योंकि ऑफिस के काम के लिए उसको जाना है, तो उसके बाद एक अकाउंट का असिस्टेंट भी जाएगा चेक करने के लिए कि होटल का बिल कितना आ रहा है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. इसका मतलब अकाउंटेंट को एक जगह पे बैठना है, अकाउंटेंट को अपने बुक्स में एंट्री करना है, और ट्रांजैक्शंस तो हर जगह पे होते रहेंगे. सो ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग एवरीवेयर, बट अकाउंट्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड एट वन सिंगल लोकेशन. अकाउंट्स आर गेटिंग प्रिपेयर्ड एट वन सिंगल लोकेशन. तो ये कैसे हो सकता है कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, ये अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा? इसके लिए फिर हम लोगों ने एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अकाउंट्स मतलब रिकॉर्डिंग है. रिकॉर्डिंग किसका? ट्रांजैक्शन का. ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहे हैं? अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट लोकेशंस हो रहे हैं. तो इतने सब जगह पे जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वहाँ सब जगह पे अगर हमको कहना है
कि अकाउंटेंट को वहाँ पे प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे जो लोग वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक रिटर्न प्रूफ क्रिएट करना चाहिए जो अकाउंटेंट के पास आएगा, फिर अकाउंटेंट उस रिटर्न प्रूफ को यूज करेगा और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा। इसका मतलब एंट्री इज नॉट गोइंग टू हैपन, आई एम रिपीटिंग अगेन, एंट्री इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन डायरेक्टली विटनेस्ड बाय द अकाउंटेंट, but entry is going to happen on the basis of the written proof generated at the time of transaction and given to the accountant. So accountant क्या करेगा, अपने ऑफिस में बैठेगा, अपने कैबिन में बैठेगा और लोग अलग अलग जगह पे काम करेंगे। काम करते करते वो क्या करेंगे, वो किए हुए काम का रिटर्न प्रूफ जनरेट करेंगे और वो प्रूफ अपने अकाउंटेंट को लाके देंगे। अकाउंटेंट उस प्रूफ को देखेगा और बाद में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच इज नेसेसरी? नंबर 1, डू द ट्रांजैक्शन. Number 2, create an accounting document. Number 3, submit the accounting document to the accountant who can then use it for the purpose of creating records. I'm repeating again. Number 1, do the transaction. क्योंकि वही तो उसके लिए तो बिजनेस चालू किया है। हमने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बिजनेस नहीं चालू किया है, हमने ट्रांजैक्शन करने के लिए बिजनेस चालू किया है। तो ट्रांजैक्शन करने को जाओ, लेकिन साथ में और एक चीज़ याद रखना कि ट्रांजैक्शन भी करना और ट्रांजैक्शन किया था इसका कुछ ना कुछ तो रिटर्न प्रूफ जनरेट करना और फिर उस रिटर्न प्रूफ को किसके पास देना है, अकाउंटेंट के पास देना है। अकाउंटेंट रिटर्न प्रूफ को देखेगा और उसको यूज़ करके बाद में अकाउंटिंग एंट्री करेगा। सो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर accountant is not directly the transaction, but starting point for the accountant is the accounting document. So these the documents are always necessary. A simple example before I go ahead, let me tell you that अगर suppose हम लोग accountant के हिसाब से सोच रहे हैं, अपने रियल लाइफ में सोच रहे हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई किया, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई किया और बाद में आपने एग्ज़ाम भी दिया और आपका एग्ज़ाम पास भी हो गए, लेकिन एसएससी का सर्टिफिकेट गुम हो गया, एसएससी का सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, तो बाद में किसी और को बताने के लिए डिफ़िकल्ट जाएगा। मैंने पढ़ाई किया था, मुझे 90% मिला था, मुझे 95% मिला था। आपको क्या लगेगा? आपको आपका मार्कशीट लगेगा, आपको आपका एसएससी का सर्टिफिकेट लगेगा। वैसे ही हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन का अपने को रिटन डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट रहेगा तो सामने वाले को उसके ऊपर विश्वास रखना ईजी होता है। डॉक्यूमेंट रहेगा तो अकाउंटेंट को क्या रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है, ये बराबर से समझ में आता है। तो अकाउंटेंट आपको ज़्यादा पूछते नहीं बैठेगा, बोलेगा डॉक्यूमेंट दिखाओ, मुझे समझ में आ गया क्या करना है, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, काम खत्म। सो अकाउंटेंट भी खुश, आप भी खुश, आप अपना अपना काम करते रहो, सिर्फ डॉक्यूमेंट जनरेट करते रहो, डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट के पास दे दो, वो एंट्री कर देगा। This is the simple system we are thinking of. So what is the importance of documents? Documents are necessary for recording all the transactions into the books of accounts. The accounting transactions are recorded in proper mode and they are computer based. Accounting documents are stored in physical files or in software. मतलब अकाउंटिंग शायद एंट्री कैसे करेगा, हाथ से एंट्री करेगा, बुक बनाया रहेगा, उसमें से पेन यूज़ करके एंट्री करते जाएगा, प्रॉपर मोड, नहीं तो कंप्यूटर बेस्ड एंट्री करेगा। और वो जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है, एक तो उसको फाइल में लगा के रखेगा, एक के ऊपर एक फाइल में लगा के रखेगा, नहीं तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का फोटो निकालेगा और सॉफ्टवेयर में अटैच करके रखेगा कि जिसकी वजह से बाद में उसको यूज़ करने को मिलेगा। तो फाइलिंग करेंगे अगर अपने को हार्ड कॉपी रखना है तो, और अगर सॉफ्ट कॉपी रखना है तो वो पर्टिकुलर बिल जो भी कुछ तुम्हारा डॉक्यूमेंट रहेगा उसका फोटो निकालेंगे और सॉफ्टवेयर में जिस तरह से हम ईमेल को अटैचमेंट करते हैं उस तरह से सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह पे अटैचमेंट का फैसिलिटी दिया रहेगा, उसको यूज़ करेंगे। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। फिर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट किस काम का है? अकाउंटेंट के तो काम का है ही, लेकिन बाद में अगर सपोज कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ा, कहीं कुछ प्रूफ अपने को जनरेट करना पड़ा, प्रोवाइड करना पड़ा, तो देन दीज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी वैलिड प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेरी पूछा, अगर लेबर डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेरी पूछा कि इसको पेमेंट किया है कि नहीं किया है, कैसे किया है, कब किया है, तो इन दैट केस दीज डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। They are going to be useful in charity commissioner office, income tax office, GST office, all government offices, and they are also useful for state government offices और local bodies। कब हमने पेमेंट किया है या फिर हमारा इतना पेमेंट करने का बाकी है, कौन से दिन को पेमेंट किया है, ये सब चीज़ें प्रूव करने के लिए अपने को डॉक्यूमेंट का फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से आपका एसएससी सर्टिफिकेट यूज़ करके बाकी लोगों को जल्दी समझ में आता है कि आपको सचमुच में कितना पढ़ाई करने को आया था, आपने कितना मार्क्स कमाया है, आपको सब्जेक्ट कितना समझा था, सर्टिफिकेट देखा तो समझ में आ गया, फिर से आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ के आईक्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब काम जल्दी हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट कितने तरीके के रहेंगे? 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एक रहता है इंटरनल डॉक्यूमेंट और एक रहता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। आई रिपीट, एक रहता है इंटरनल डॉक्यूमेंट और दूसरा रहता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट।
अगर इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब उस डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है। अकाउंटेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर क्रिएट किया रहेगा तो उसको बोलने का इंटरनल डॉक्यूमेंट। और अकाउंटेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, बल्कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने बना के अकाउंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन को दिया रहेगा, दूसरे बिजनेस ने बना के अकाउंटेंट के बिजनेस को दिया रहेगा, तो हम बोलेंगे उसको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। इंटरनल मतलब हमारे बिजनेस ने बनाया, जिसका अकाउंटेंट है उसी के बिजनेस ने बनाया रहेगा। अकाउंटेंट जिस बिजनेस में काम कर रहा है उसी बिजनेस ने बनाया रहेगा, उसी बिजनेस के एम्प्लॉयज ने बनाया रहेगा, उसको कहना है अपने को इंटरनल डॉक्यूमेंट। और अकाउंटेंट जिस बिजनेस में काम कर रहा है उस बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज ने नहीं बनाया, बल्कि बाहर के किसी बिजनेस के एम्प्लॉयज ने बनाया, तो उसको बोलना पड़ेगा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अकाउंटेंट का शुरुआत कहाँ से है? ट्रांजैक्शन तो अलग अलग एम्प्लॉयज करेंगे और अकाउंटेंट स्टार्ट करेगा कहाँ से? डॉक्यूमेंट से। और सिर्फ अकाउंटेंट को डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्ट को भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने को याद रखने का है, इसको भूलने का नहीं है। ओके, लेट मी कंसिडर द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। सबसे पहले चेक करेंगे पहला इंटरनल डॉक्यूमेंट, उसका नाम है जर्नल वाउचर। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमको क्या करना है? हमको जर्नल बनाना है। जर्नल मतलब क्या है? प्राइम बुक ऑफ एंट्री। एंट्री कौन करेगा? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कैसे एंट्री करेगा? जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहाँ सब जगह पे जाना अकाउंटेंट के बस की बात नहीं है। इसके लिए अकाउंटेंट क्या बोलेगा? तुम सब लोग ट्रांजैक्शंस करो और ट्रांजैक्शन करते करते एक डॉक्यूमेंट जनरेट करो और जनरेट किया हुआ डॉक्यूमेंट मुझे देने को भूलना मत। उस डॉक्यूमेंट को मैं यूज़ करूँगा और उसको यूज़ करके मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करूँगा। तो डॉक्यूमेंट कौन से तरीके के रहेंगे? दो तरीके के रहेंगे। कौन सा वाला? इंटरनल, दूसरा कौन सा वाला? एक्सटर्नल। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मतलब अकाउंटेंट जिस बिजनेस में काम कर रहा है उन्हीं ने बनाए हुए ट्रांजैक्शंस या फिर उन्हीं ने बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स। और एक्सटर्नल इसका मतलब अकाउंटेंट जहाँ पे काम कर रहा है उस बिजनेस ने नहीं, दूसरे किसी बिजनेस ने बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स है, अकाउंटेंट उसको यूज़ कर रहा है, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। अभी हम देख रहे हैं जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर ये कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट है? ज़रा एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ पेन का, जिसकी वजह से आपको समझने को थोड़ा आसानी हो जाएगा। जर्नल वाउचर ये एक इंटरनल टाइप का ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट है। ओके, इट इज़ एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। देखो इसमें क्या क्या रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है नेम ऑफ द फर्म। नेम ऑफ द फर्म, जनरली यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म इज प्री प्रिंटेड, याद रखो ये प्री प्रिंटेड रहता है, ये बार बार हाथ से लिखने का रहता नहीं है। जनरली ये सेंटर अलाइन रह सकता है, लेफ्ट अलाइन भी रहेगा, अलाइनमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट याद रखने का कि नेम ऑफ द फर्म इज गोइंग टू बी जनरली प्री प्रिंटेड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक आध ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन अभी तक, तो बोलेगा सर इतना बड़ा प्रिंटिंग विंटिंग करके रखने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर उसके और पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हम लोग, तो ऐसा प्री प्रिंटेड ऐसा फॉर्मेट वाला जर्नल जैसा भी अपने सामने दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसा बना के ले सकते हैं। फिर नेम ऑफ द फर्म के सामने वो पहले से अपना रबर स्टैम्प मार के रखेंगे, तो इट विल बी ईजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। ओके, सो द नेम ऑफ द फर्म is going to be generally pre-printed or it will be a rubber stamp thing. Okay, next part is voucher number, transaction number और date. अभी ये तीन चीज़ें साइड में आ गई है, इसके बीच में ब्लैंक जगह छूटा हुआ नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वाउचर नंबर के आगे थोड़ा सा ब्लैंक जगह रहता है, ट्रांजैक्शन नंबर के आगे थोड़ा ब्लैंक जगह रहता है और डेट के आगे ब्लैंक जगह रहता है, सो दैट यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर थिंग। जनरली वाउचर नंबर इज ऑल्सो प्री प्रिंटेड, प्री नंबर्ड, पहले से ही नंबरिंग किया जाता है, क्योंकि हमको ये मेंटेन करना है कि बाबा वाउचर्स बीच में कोई चेंज न कर दे। तो पहला वाउचर है, दूसरा वाउचर सपोज खराब हो गया, तो दूसरा वाउचर खराब हो गया करके लिखने का अपने को कि बाबा दूसरा वाउचर गायब हो गया, दूसरा वाउचर खराब हो गया। अगर सपोज दूसरा वाउचर यूज़ करके बाद में तुमने वेस्ट किया रहेगा तो दैट इज़ नॉट ओके, विच इज़ अलाउड। तो हमको कोशिश क्या करनी है कि वाउचर्स किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो लगते हैं वो किसी भी एम्प्लॉई ने खराब नहीं करने हैं, और अगर खराब किया तो उसका भी रिकॉर्ड जनरेट होना चाहिए। सो वाउचर नंबर इज ऑल्सो प्री प्रिंटेड और इट इज गोइंग टू बी सिस्टम जनरेटेड। अगर आपका सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम रहेगा तो इट इज गोइंग टू बी सिस्टम जनरेटेड। ट्रांजैक्शन नंबर कैन बी एनीथिंग, दैट इज पॉसिबल कि शायद वो प्री नंबर्ड रहेगा, शायद वो यूजर इनपुट वाला रह सकता है। वाउचर नंबर जनरली यूजर इनपुट वाला रहता नहीं है, वाउचर नंबर जनरली प्री प्रिंटेड रहता है। अगर आपने मार्केट से ब्लैंक वाउचर बुक परचेस किया रहेगा तो लाने के बाद जनरली उसके ऊपर भी वो नंबरिंग मशीन यूज़ करके ठप्पा मार के रखते हैं, सो दैट इट कैन नॉट बी यूज बाय समबडी एल्स आफ्टरवर्ड्स।
So voucher numbers are pre-printed. Name of the firm is either pre-printed or rubber stamp. Transaction number can be user input. Date तो obviously user input ही रहेगा. Next, name of the debit account एंड नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट. मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है. अकाउंटेंट पहले यहाँ पे लिख के रखेगा, उसको यूज़ करके हम लोग जर्नल में एंट्री करने वाले. फिर पर्टिकुलर्स, मतलब किस चीज़ की वजह से ट्रांजेक्शन किया था, कि हमने कुछ परचेस किया था, कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट किया था, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मेकिंग पेमेंट, कितना अमाउंट पे किया था, मे बी 1000 रुपीज़ पे किया था, कि क्या किया था. तो वह सब चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा. फिर अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे लिखा जाएगा 1000 ओनली. मतलब अमाउंट इज नॉट जस्ट रिटन इन फिगर्स बट इट इज ऑल्सो रिटन इन वर्ड्स, सो दैट अगर कुछ गड़बड़ हो गई, एक आध जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया, एक आध जीरो लिखने का रह गया, तो एटलीस्ट अमाउंट मिसमैच होगा तो समझने को नजर आएगा कि किसने गड़बड़ किया हुआ है. फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो जरा, अप्रूव्ड बाय, ऑथोराइज बाय एंड सिग्नेचर. ऐसा 3 लोगों का सिग्नेचर लगने वाला है. मतलब ये वाउचर किसने अप्रूव किया, हाँ बाबा ये प्रिंटिंग एसेसरी था, मैंने खर्चा करने को बोला था, किसने बोला ये, उसको ऑथराइजेशन किसने दिया था, मतलब उसका बॉस कोई है क्या, उसने बोला है क्या, और बाद में ये खर्चा जिसने किया है उसका सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए कि बाबा मैंने खर्चा किया हुआ है. सो दिस इज हाउ जर्नल वाउचर इज प्रिपेयर्ड. हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, अकाउंटेंट के हाथ में अपने को डॉक्यूमेंट देना है जिसकी वजह से वो एंट्री करने को जाएगा, तो उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट देना है उसको हम क्या बोलेंगे, जर्नल वाउचर. जर्नल इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट. Journal voucher may be prepared by the accountant but can also be prepared by the different people in the organization. उसमें name of the firm is pre-printed or at least rubber stamp. Voucher number is pre-printed or they are numbered by using a numbering machine. Transaction number date can be user input. Name of the debit account and name of the credit account हाथ से लिखना पड़ेगा. बाद में फिर particulars किस चीज़ की वजह से खर्चा हुआ था उसका डिटेल्स लिख दो, और उसके बाद में उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट वर्ड्स में भी लिखो, अमाउंट फिगर्स में भी लिखो, और उसके बाद में कम से कम 3 लोगों का साइन लगेगा. जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका साइन, जिसने उसको ऑथराइज किया उसका साइन, और जिसने उसको अप्रूव किया उसका साइन. ऐसा 3 लोगों का साइन लगेगा. दैट मीन्स वी आर इंश्योरिंग कि अकाउंटेंट कुछ गड़बड़ करने वाला नहीं है. देखो हमको किसके साथ बिजनेस करना है, हमको बिजनेस में अलग अलग लोगों के साथ काम करना है. ये सब लोग अपने रिलेटिव्स रहेंगे इसका गारंटी नहीं है. हम छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं. छोटे बिजनेस में भी अपने को धीरे धीरे बड़ा होते जाने का, तो अपने को सिस्टम पहले से डिजाइन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके अपना बिजनेस बड़ा हो सकेगा, वरना बड़ा नहीं हो सकेगा. तो अपने को पहले से याद रखना है कि अकाउंटेंट भले ही अपने घर का आदमी रहेगा तो भी उसको बोलने का भैया आप ये ट्रांजैक्शन इस तरह से मेंटेन करो, उसका रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन करो, वाउचर चाहिए. कल 10 दिन के बाद या फिर 10 महीने के बाद आपको पूछा कि ये ट्रांजैक्शन का डिटेल्स क्या था, आपके पास डिटेल्स रेडी रहना चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक ट्रांजैक्शन किसने किया उसका सिग्नेचर, उसको किसने ऑथोराइज किया था उसका सिग्नेचर, और ये ट्रांजैक्शन बराबर हो चुका है जैसा आपने बिजनेस के फायदे का है वैसा ही किया हुआ है, ऐसा अप्रूव करने वाले का भी सिग्नेचर लगेगा. मतलब अप्रूव हुआ नहीं रहेगा तो अकाउंटेंट इसका एंट्री नहीं कर पाएगा, ऑथोराइज किया हुआ नहीं रहेगा तो अकाउंटेंट इसका एंट्री नहीं कर पाएगा. एक आदमी बोल रहा है सर मैंने खर्चा किया, आप अकाउंट्स के बुक्स में डाल दो. हम बोलेंगे नहीं, तू कौन है खर्चा करने वाला, तुझे अप्रूव किसने किया, तुझे ऑथराइज किसने किया खर्चा करने के लिए, पहले वो बता. उनका सबका सिग्नेचर लेके आ, फिर हम आगे जाएंगे. So this is how the business is going to consider the importance of accounting document. Not only it is supposed to give the details of date, कब हुआ, when, क्या हुआ, what, कितना हुआ, how much, who did it, who approved it and who authorized it. 3 लोग, इतना चीज़ें एक डॉक्यूमेंट के ऊपर रहेगा. मतलब बाद में बिजनेस को ये समझ में आता है कि भाई ये बिजनेस किस तरह से चल रहा था, ये ट्रांजैक्शंस कभी कभी हुए और किस तरह से हुए थे. सो दिस इज द फर्स्ट वाउचर विच इज़ एन इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड एज जर्नल वाउचर. जर्नल वाउचर में फिर अलग अलग तरीके के वाउचर रह सकते हैं. अ कंपनी कैन स्पेसिफाई, अ बिजनेस कैन स्पेसिफाई कि जो जो कैश के ट्रांजेक्शन है ना उसको हम थोड़ा अलग तरीके का वाउचर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बाई डिफॉल्ट कैश इज गोइंग आउट. अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट है हमारा ये, हम लोग इसको पेमेंट ही कर रहे हैं. लेट मी चेंज द पेन कलर, 1 मिनट ज़रा रुकिए. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं. मतलब इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस. ओके, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस. ये इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाने के टाइम हमको समझ में आ रहा है कि अब देयर आर सर्टन डॉक्यूमेंट्स वेयर वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट करेंगे. मतलब हमेशा क्या होगा, कैश इज गोइंग आउट. कैश इज गोइंग आउट इसका मतलब हमेशा अपने को ये जो पीछे का पॉइंट था, नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट हमेशा कैश रहने वाला है, हमेशा बैंक ही रहने वाला है. तो काय को टेंशन लेने का, काय को बार बार लिखते बैठने का. तो चलो हम प्रिंटिंग करने के टाइम उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट करेंगे और बोलेंगे इसका नाम क्या है, कैश वाउचर. मतलब ये वाउचर के अंदर
जो जो ट्रांजैक्शंस लिखे हैं उसमें हमेशा कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब फिर से बोलने की जरूरत नहीं कि विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। पिछले वाउचर में क्या था, नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड एज वेल एज नेम ऑफ द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड, दोनों लिखने पड़ रहे थे। इसमें जनरेट नहीं है, इसमें अपने को सिर्फ नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड उसकी जरूरत पड़ेगी। नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर हेडिंग लिख के रखा हमने, ये कौन सा वाउचर है, ये कैश वाउचर है। कैश वाउचर है मतलब इसमें कैश ही बाहर गई है। जब कैश बाहर जाती है तो ये वाउचर यूज होता है। इसका मतलब हमको पूरी गारंटी है कि इसमें सिर्फ कैश बाहर जा रही है, क्रेडिट सिर्फ कैश को ही गया रहेगा, बाकी किसी का ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें देखो यहाँ पे बराबर से दिया है अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, उन्होंने क्या कर दिया है, नाम पहले से प्री प्रिंटेड दे दिया। देखो जरा, नकुल एंड कंपनी, जैसा मैंने आपको बोला था जर्नल में नाम हमेशा प्री प्रिंटेड रहता है, पर में उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, सो इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। फिर देखो वाउचर नंबर, यहाँ पे अभी जगह छोड़ा उन्होंने, एम्प्टी स्पेस दिया है। जनरली दिस इज गोइंग टू बी अगेन प्री प्रिंटेड। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक तो प्री प्रिंटेड रहेगा, नहीं तो ये क्या रहेगा, पहले से नंबरिंग करके रखा रहेगा बाय यूजिंग द नंबरिंग मशीन। डेट अपने को हाथ से डालने का है, सो एंड सो डेट, कौन से दिन को पेमेंट किया था वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। बाद में जीएसटी आईएन नंबर, मतलब क्या है तुम्हारा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा वो नंबर यहाँ पे डालने का रहेगा। फिर पे किसको कर रहे हो, टू हुम यू आर पेइंग, ए एंड कंपनी को पे कर रहे हो, बी एंड कंपनी को पे कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, बाहर वाले को पे कर रहे हो, अंदर वाले को पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो उसका नाम लिखने का है। सो यू मे पे टू एम्प्लॉय एक्स, यू मे पे टू ए एंड कंपनी, यू मे पे टू एनीबडी। बिजनेस के अंदर के अपने एम्प्लॉय को पे किया तो भी चलेगा, यही वाउचर। बिजनेस के बाहर के अपने किसी कस्टमर को, अपने किसी सप्लायर को, अपने किसी वेंडर को पेमेंट किया रहेगा तो भी चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसका नाम लिखना पड़ेगा, पे टू हुम। ओके, बाद में ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, क्यों पे करना है, आर यू पेइंग सैलरी, आर यू पेइंग टी एंड ब्रेकफास्ट चार्जेस, आर यू पेइंग ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर पेमेंट। पहले किसको पे कर रहे हो, हुम, बाद में क्यों पे कर रहे हो, वाई, वो बताना पड़ेगा। ओके, बाद में डेबिट अकाउंट, मैंने आपको बोला था यहाँ पे डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट ऐसा दो अलग अलग लाइन नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर ही नाम लिख के रखा है कैश वाउचर। कैश वाउचर का मतलब क्या है, कैश इज गोइंग आउट, मतलब हमेशा क्रेडिट किसको पड़ेगा, कैश को ही क्रेडिट पड़ेगा। देखना क्या है, सिर्फ डेबिट किसको दिया वो देखने का, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सो डेबिट अकाउंट, विच अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड, सो यू माइट हैव पेड टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैवलिंग बाय बस टू जीएसटी ऑफिस, एंड डेबिट अकाउंट कौन सा रहेगा फिर तुम्हारा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट। I hope it is easy to understand what is happening. Okay. टोटल डैश डैश ओनली। अभी यहाँ पे क्या हो गया, कितना अमाउंट पे किया है वो तुमको पहले वर्ड्स में लिखा है यहाँ पे, और बाद में वही अमाउंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिगर्स में लिखना पड़ेगा। जैसा अपना जर्नल वाउचर में था वैसे कैश वाउचर में है कि आपको अमाउंट इन फिगर्स भी बोलना पड़ेगा, अमाउंट इन वर्ड्स भी बोलना पड़ेगा, एंड बाद में किसने बनाया, उसको पास किसने किया, मतलब ऑथराइज किसने किया है, और बाद में जिसको पैसा मिला उसका सिग्नेचर चाहिए कि सचमुच में मुझे पैसा मिला हुआ है। तो ये वाउचर बनाने वाला कौन है, ये वाउचर को ऑथोराइज करने वाला कौन है, और ये वाउचर में जो पैसा दिया ऐसा आपने बोला हुआ है, वो पैसा जिसको मिला है उसने बोलना चाहिए हाँ मुझे पैसा मिला, ये लो मैं साइन करता हूँ। साइन करता रहेगा तो साइन करेगा, नहीं आता रहेगा तो लेफ्ट हैंड का थंब लगाएगा, बट इट इज़ नेसेसरी। कैश वाउचर में अपने को सिर्फ क्या लगेगा, डेबिट अकाउंट ही लगेगा, अपने को क्रेडिट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कैश वाउचर इसका मतलब कैश पेड, एंड कैश पेड इसका मतलब ऑलवेज कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो अपने को किसको क्रेडिट किया ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कैश वाउचर। नाउ थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है, मतलब हम जब गुड्स परचेस करते हैं तो जिनके पास से परचेस किया है, हम जब गुड्स परचेस करते हैं तो जिनके पास से परचेस किया है वो अपने को एक बिल देंगे, वो अपने लिए बन जाएगा परचेस बिल। और हम जब गुड्स बेचेंगे तो हम जिसको गुड्स बेच रहे हैं उसको हम दे देंगे एक बिल, उसका नाम रखेंगे हम लोग सेल्स बिल। परचेस बिल, सेल्स बिल, ये लेमैन के लैंग्वेज में यूज किए वाले वर्ड्स हैं। अकाउंटेंट बोलता है नहीं बिल मत बोलो, हम कंसिडर करेंगे इनवॉइस। और ये कौन सा इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है। इसका मतलब इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल लॉ। अभी इंडिया में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हिसाब से बनाया हुआ बिल है।
सर ये कौन सा बिल है, परचेस बिल है कि सेल्स बिल है? अगर यह हमने परचेस करते वक्त सामने वाले पार्टी ने जिसके पास से हमने गुड्स परचेस किए थे उसने बना के दिया रहेगा तो ये बन जाएगा परचेस वाला टैक्स इनवॉइस। और अगर हम गुड्स बेच रहे हैं, बेचते बेचते अगर हमने सामने वाले पार्टी को ये बिल दिया रहेगा तो ये बन जाएगा सेल्स वाला टैक्स इनवॉइस। तो सर ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है? अगर ये परचेस का रहेगा, जस्ट अ मिनट, अगर ये परचेस का रहेगा तो ये हम नहीं बनाने वाले हैं, सामने वाला पार्टी जिसके पास से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं वो बनाने वाला है। इन दैट केस इट बिकम्स विच डॉक्यूमेंट? एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, क्योंकि इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। और अगर ये सेल्स वाला रहेगा, सेल्स के वक्त बनाया रहेगा टैक्स इनवॉइस, तो हम गुड्स बेच रहे हैं, हमको लिख के देना पड़ेगा, मतलब इट विल बिकम इंटरनल डॉक्यूमेंट। ओके, सो when we are thinking of tax invoice, it may be internal document, it may be external document, it depends upon who is preparing the same. तो बनाने वाला अगर परचेस करते हैं तो इसका मतलब हम नहीं बना सकते हैं, जिसने बेचा वो गुड्स बना के देगा, सॉरी बिल बना के देगा अपने को, तो उसने बना के दिया मतलब बन जाएगा अपने लिए एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। और हम गुड्स बेचेंगे तो अपने को डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम लोग सेल्स टैक्स इनवॉइस। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, परचेस का हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिल गुड्स बेचने वाला सामने वाला पार्टी है तो वो बिल बनाएगा, उसका सेल्स बिल मतलब अपने लिए परचेस बिल बन जाएगा। और जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारा सेल्स बिल मतलब सामने वाले पार्टी के लिए बन जाएगा परचेस बिल। हम उसकी बुक्स की बात नहीं करेंगे, हम अपने बुक्स की बात करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो टैक्स इनवॉइस कौन बनाता है? जो गुड्स बेचता है वो टैक्स इनवॉइस बनाता है। आई रिपीट, जो गुड्स बेचता है वो टैक्स इनवॉइस बनाता है, और जो गुड्स खरीदी करता है, परचेस करता है, बाय करता है, उसको वो इनवॉइस मिल जाता है। सो जब हम लोग गुड्स को परचेस कर रहे हैं तो हमने टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया, सामने वाले पार्टी ने बना के हमको दे दिया, तो अपने लिए क्या बन गया? वो परचेस टैक्स इनवॉइस। और जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो हमने क्या कर दिया? उसके साथ अपना वाला एक सेल्स बिल बना दिया, मतलब सेल्स टैक्स इनवॉइस बना दिया, सामने वाले पार्टी को दे दिया। जो गुड्स बेचेगा वो बिल बनाएगा, वो टैक्स इनवॉइस बनाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अभी यहाँ पे भी देखो प्री प्रिंटेड है, जिसने गुड्स बेचा है उसका नाम पहले से आया हुआ है। मुझे ज़रा कलर चेंज करना पड़ेगा पेन का, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, किधर गया मेरा पेन का कलर? यस, नाउ इट इज़ करेक्ट। और जनरली हम क्या करेंगे, फिर जिस दुकान से बेचा है उसका हम लोग एड्रेस भी डाल देंगे। तो नाम क्या है और एड्रेस क्या डालेंगे। उसके अलावा बिल का नंबर, अभी ये भी जनरली प्री प्रिंटेड रहता है। अगर प्री प्रिंटेड बिल नहीं रहेगा, बिल नंबर नहीं रहेगा, तो डॉक्यूमेंट का वजन कम हो जाएगा, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि बीच बीच में कुछ बिल्स बना के डायरेक्टली दे दिए हैं और उसका प्रूफ गायब कर दिया रहेगा। ये इनकम टैक्स को चलने वाला नहीं है, ये जीएसटी को चलने वाला नहीं है। आपके सॉफ्टवेयर में वो बोल के रखेंगे, अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा तो, कि द बिल नंबर शुड बी ऑटो जनरेटेड। और अगर आपका बिल हाथ से बनाते रहोगे, इन दैट केस बोलेंगे कि बिल नंबर शुड बी प्री प्रिंटेड। बाद में जीएसटी नंबर मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा वो, फिर किसको गुड्स बेच रहे हो उस कस्टमर का नाम, हमने सपोज XYZ एंड कंपनी को गुड्स बेचा रहेगा तो उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर उनका एड्रेस, वो कहाँ के है, उनका भी एड्रेस लिखना पड़ेगा। बाद में सीरियल नंबर, क्योंकि देर इज़ नॉट अ गारंटी, देर इज़ नो गारंटी कि आपने एक ही गुड्स बेचा रहेगा। आपने शायद एक चीज़ बेची रहेगी, दूसरी चीज़ बेची रहेगी, तीसरी चीज़ बेची रहेगी, तो अलग अलग चीज़ें बेची है तो उसका सीरियल नंबर आएगा। कौन सी चीज़ बेची है उसका नाम यहाँ पे आएगा। बाद में HSN, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HSN? HSN मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, NOMENCLATURE, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने का सिस्टम, नाम देने के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HSN। तो जब ये तुम्हारे पास HSN आएगा, ये तुमको कौन देने वाला है? ये जीएसटी देने वाला है। तुम किसी चीज़ को कुछ भी बोल सकते हो, तुम उसको बिस्किट बोलोगे, तुम उसको खारी बिस्किट बोलोगे, तुम उसको नहीं सर क्रैकजैक करके बोलने का करे बोल, तो बोले नहीं सर खारी नहीं, हम क्रैकजैक नहीं बोले, हम कुछ तो नाम अलग देंगे, अलग अलग नाम रखे रखते, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली कि इसके लिए कौन सा रेट एप्लीकेबल है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, नहीं आपको जो नाम देने का नाम दे दो, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से इसका एक पर्टिकुलर नंबर है, हमने इसका क्लासिफिकेशन करके रखा है हमारे हिसाब से, मतलब किसके हिसाब से? जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से। जीएसटी डिपार्टमेंट ने अलग अलग गुड्स का, अलग अलग सर्विसेज का एक सिस्टम बना के रखा है, नाम देने का सिस्टम, और उस सिस्टम को बोलते हैं HSN।
उस HSN में हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं एंड इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपका कमोडिटी कौन से चीज़ का है. अ सिंपल एग्जाम्पल इज, आप सोच के देखो, आपके स्कूल में नहीं तो आपके कॉलेज में आपको रोल नंबर दिया जाता है. क्यों? फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आनंद है, अभी मैं क्लास में बैठा हूँ और टीचर बोलती है आनंद कौन है, तो इन दैट केस शायद 4 लोग हाथ खड़े कर सकते, बोल सकते हैं हाँ मैं भी आनंद हूँ करके. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टीचर टू अंडरस्टैंड कि आनंद कौन कौन है. अभी 4 लोग हैं तो किसके साथ बात करने का, किसने क्या करके रखा है, डिफिकल्ट जाएगा. तो टीचर क्या बोलती नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबको रोल नंबर देकर रखेंगे. रोल नंबर देकर रखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक आनंद का अलग रोल नंबर है, दूसरे आनंद का अलग रोल नंबर है, तीसरे आनंद का अलग रोल नंबर है. इट बिकम्स ईजी फॉर टीचर नाउ टू अंडरस्टैंड हु हैज रिटन विच आंसर, हु गॉट हाउ मच मार्क्स एंड अदर थिंग्स. तो रोल नंबरिंग का सिस्टम हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड कि एक ही नाम के जैसे अलग अलग बच्चे रहेंगे तो भी इन दैट केस किसने क्या क्या पेपर में लिखा है और किसको कितने मार्क्स मिले हुए हैं. उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करता है, गुड्स का नाम रखने का जो टेक्निक है आपका, आप कुछ भी कर दो लेकिन हम उसको एक नंबरिंग का सिस्टम बना के रखेंगे. दैट नंबर इज कॉल्ड एज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. मतलब वो नंबरिंग का सिस्टम है. ओके, उसके हिसाब से जो नंबर रहेगा वो यहाँ पे डालने का है. फिर आपने जो गुड्स बेचा है उसका रेट क्या है, 10 रुपये का एक यूनिट है, 10 रुपीज़ पर यूनिट या 10 रुपीज़ पर लीटर, 10 रुपीज़ पर केजी, जो आपका रेट रहेगा वो रेट लिख दो. बाद में उसका क्वांटिटी, हाउ मेनी यूनिट्स डिड यू सेल, लीटर्स में बेचा, केजी में बेचा, नंबर ऑफ यूनिट्स में बेचा, वो यहाँ पे लिख दो. फिर उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना आया, मतलब रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट. कितने रेट से बेचा, कितना क्वांटिटी बेचा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट इज द टैक्सेबल अमाउंट. उसके ऊपर लगेगा फिर CGST का परसेंटेज और लगेगा फिर SGST का परसेंटेज. CGST का मतलब क्या है, सेंट्रल GST, और SGST का मतलब क्या है, स्टेट GST. सो सेंट्रल GST कितना लगा उसका परसेंटेज और उसका अमाउंट, और स्टेट GST कितना लगा उसका परसेंटेज उसका अमाउंट. ऐसा दो चीज़ें आपको लगने वाला है, दैट विल हैव टू बी रिटन देयर. फिर ये अपना टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST इज इक्वल टू टोटल अमाउंट. इस तरह से कंप्लीट होगा. फिर इसका टोटलिंग करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड हियर. ये जो इधर का टोटलिंग है वो टोटलिंग यहाँ पे आएगा रुपीज इन वर्ड्स. फिर बाद में बैंक डिटेल्स, बैंक नेम, ब्रांच, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और सिग्नेचर, एंड बाद में E&OE. मतलब हम जिसको बिल दे रहे हैं उसको बोल के रखेंगे भैया ये बिल का पेमेंट करने का है तो कौन से बैंक में जाना. हमारा बिजनेस, जिसने ये बिल बनाया, जिसने टैक्स इनवॉइस बनाया, वो बोलेगा हमारा बैंक अकाउंट. सो इट इज द बैंक डिटेल्स ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस. आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसको गुड्स बेचा है उसका बैंक डिटेल्स नहीं चाहिए, जिसने गुड्स बेचा है उसका बैंक डिटेल्स चाहिए. तो बैंक डिटेल्स अपना आएगा, शायद लेट अस टेक एन एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो लिख दूंगा. फिर बैंक का IFSC कोड, जैसा गुड्स का HSN नंबर है ये GST डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, वैसा RBI ने बनाया हुआ है IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऐसा करके उसका फुल फॉर्म है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. तो ये जो आपका, एक्चुअली ये कोड शब्द का जरूरत नहीं, सिर्फ IFSC बोला तो भी काम खत्म हो जाता है. ओके, तो ये ब्रांच, हर एक ब्रांच का, हर एक बैंक का एक पर्टिकुलर कोड रहेगा और उस कोड के हिसाब से आगे उसके जितने अलग अलग ब्रांचेस रहेंगे उसको भी अलग अलग नंबरिंग दिया रहेगा. ये सिस्टम किसने डेवलप किया है, RBI ने डेवलप किया है, जिसकी वजह से RBI को फट से समझ में आता है कौन से बैंक का, कौन से ब्रांच का, कौन सा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किधर से हो रहा है करके. इसके लिए वो ब्रांच IFSC कोड देते हैं. इसको यूज़ करके हम लोग फटाफट से इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं. NEFT RTGS पेमेंट करने का रहेगा तो हमको क्या लगता है, सामने वाले के बैंक का अकाउंट नंबर लगता है और इसके अलावा उसका ब्रांच का IFSC कोड लगता है. तो बैंक का नाम लगेगा, ब्रांच का लोकेशन लगेगा और ब्रांच का IFSC कोड लगेगा. तो ये तीनों चीज़ें लिख के रखेंगे और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे आ गया. देखो जरा, बैंक का नाम आ गया, बैंक का अकाउंट नंबर आ गया और ब्रांच का IFSC कोड आ गया. तीनों चीज़ें देके रखा रहेगा. तो जिसको हमने गुड्स बेचा है उसको समझेगा कि इसका पेमेंट कब करना है और किधर करना है, कैसे करना है. और जनरली तो अभी आजकल ज़्यादा लोग चेक से पेमेंट नहीं करते हैं. जनरली लोग कैसे पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं. तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है. इसके अलावा फिर नीचे सिग्नेचर करना पड़ेगा कि जिसने ये टैक्स इनवॉइस बनाया रहेगा उसने साइन करना चाहिए. एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, E&OE. शायद आपको पता रहेगा इसका मतलब क्या है करके, फिर भी बता के रखता हूँ. E&OE का फुल फॉर्म होता है एरर्स एंड ओमिशंस
एक्सपेक्टेड, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, ई एंड ओ ई। ये क्यों दिया जाता है? समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द बिल इज मेड अप ऑफ लेट अस से 10 डिफरेंट पर्टिकुलर्स, बहुत अलग अलग आइटम्स है। तो कभी कभी शायद अपना HSN नंबर लिखने में गलती हो सकती है, कभी कभी शायद हम लोग रेट लिखने में गलती कर सकते हैं, कभी कभी शायद क्वांटिटी लिखने में गलती कर सकते हैं। अगर कंप्यूटराइज रहेगा तो शायद ये मिस्टेक्स कम होगी, लेकिन हो भी सकती है फिर भी। और बाद में मल्टीप्लिकेशन करने में गड़बड़ हो गई, या फिर गलत रेट लगा लिया CGST का, गलत रेट लगाया SGST का, या फिर इसका टोटलिंग में गड़बड़ किया, या फिर इधर लिखा हुआ अमाउंट और इधर लिखा हुआ रुपीज इन वर्ड्स मैच नहीं हुआ, तो बाद में क्या हो, मतलब देर इज सम एरर विच इट इज नॉट इंटेंशनली डन, जानबूझ के सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए नहीं किया है, लिखते लिखते मिस्टेक हो गया। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाएगी, हमने साइन किया है भाई हमारा ट्रांजैक्शन है, तो सपोज इसका सबका टोटलिंग आना चाहिए था 1 लाख रुपया, जस्ट एग्जाम्पल, टोटलिंग आना चाहिए था 1 लाख रुपया, लेकिन गलती से यहाँ पे लिखा सिर्फ 10,000, फिर रुपीज़ इन वर्ड्स भी लिख दिया 10,000। ये रेट बराबर लिखा है, क्वांटिटी बराबर लिखा है, टैक्सेबल अमाउंट CGST SGST सब बराबर लिखा है, सब आइटम्स 10 अलग अलग आइटम्स सब कुछ बराबर लिखा है, लेकिन गलती से सिर्फ टोटलिंग लिखने के टाइम 1 0 कम लिखा और वो यहाँ पे 10,000 लिख के रखा। बिल भी दे दिया, खुद ही साइन करके दे दिया, सब डिटेल्स है, टोटलिंग मिस्टेक है, बिल दे के हो गया, साइन करके हो गया, सब कुछ हो गया, और बाद में हम लोग देख रहे हैं अरे यार ये गड़बड़ हो गई है, क्या हो गया, 97 का हिसाब नहीं लग रहा है अपने को करके, फिर समझा अरे बाप रे हमारे बिल में मिस्टेक हो गया है, बिल में मिस्टेक हो गया, जितना लिखना चाहिए था कितना 1 लाख लिखा है कितना 10,000, 97 का क्या करें। तो ये जो हम लोग XYZ को गुड्स बेचे थे उसको हम लोग एक नोट भेजते हैं कि XYZ हमने तुझे बिल दिया था 10,000 रुपीज़ का, उसमें ज़रा गड़बड़ है राजा, 97 रुपीज़ और देना पड़ेगा क्योंकि बिल का एक्चुअल अमाउंट 1 लाख रुपये है। तो XYZ बोलेगा अरे नहीं आपने लिख के दिया है ना, आपने साइन किया है ना कि 10,000 है, तो मैं 10,000 नहीं दूंगा, ये आपका गड़बड़ है, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। हम बोलेंगे सर ज़रा नीचे देखो ना, नीचे लिखा है हमने, क्या लिखा है E&OE, E&OE लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने खुद ही लिख रखा है कि शायद कुछ एरर्स रह सकते हैं और ओमिशन शायद लिखने का रहेगा, इसलिए ओमिशन रह सकते हैं, हमने एक्सपेक्ट किया है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो अभी हमको जब नज़र आया कि क्या एरर हुआ था, या फिर अभी हमको नज़र आया कि क्या ओमिशन हो गया था, तो उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने ये साइन किया रहेगा यहाँ पे भले ही कि बाबा ये हमारा बिल है करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल है, इसमें एरर्स रहेगा तो हम बाद में इन एरर्स को रेक्टिफाई करने की ताकत रखते हैं, ऐसा हमने खुद ही बोल के रखा है और बाद में हमने साइन किया हुआ है। इसका मतलब अभी XYZ को हम बोल सकते हैं कि भैया आपको बिल दिया था, उसमें गलती से 10,000 लिखा हुआ था, उसमें 97 लिखने का रह गया है, अभी हम लिख के दे रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू डू दैट? येस, इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट। दैट्स वाई E&OE इज जनरली प्रिंटेड इन योर टैक्स इनवॉइस। ओके, सो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया। नंबर 1 मैंने आपको सिखाया कि अकाउंटेंट एक जगह पे रहता है, ट्रांजैक्शंस अलग अलग जगह पे चलते रहते हैं, जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस है वहाँ पे अकाउंटेंट नहीं जा सकता है। अकाउंटेंट चित्रगुप्त नहीं है कि जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस है आपका बही खाते में फटाफट से लिख के रख रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो अकाउंटेंट बोलता है देखो भैया मैं एक जगह पे हूँ, मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलता है, तो आप अपने अपने ट्रांजैक्शंस कर दो और मुझे आके बोलो। लेकिन फिर आप शायद बोलने को भूल जाओगे, शायद आप 4 दिन के लिए यहाँ पे थे ही नहीं, ऑफिस से बाहर चले गए थे, ऑफिस के काम के ही बाहर गए थे, 4-5 दिन के लिए बाहर गए थे और बाद में अभी आप यहाँ पे वापस आ गए हो। तो 4 दिन का सारा हिसाब आप देने के टाइम अगर आप भूल गए तो, एक आध हिसाब आपका ठीक से नहीं दिया, तो उससे अच्छा ऐसा करो जब जब ट्रांजैक्शन करोगे तब तक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया करो और वो डॉक्यूमेंट का पूरा थप्पी मुझे दे दो, बाद में मैं उसको यूज़ करके एंट्री करूँगा। तो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वाउचर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट कितने तरीके के रह सकते हैं? 2 तरीके के रह सकते हैं। एक कौन सा रहता है? इंटरनल। दूसरा कौन सा रहता है? एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जिस बिजनेस का अकाउंटेंट है उसी बिजनेस ने बनाया रहेगा तो इट इज़ इंटरनल, और जिस बिजनेस का अकाउंटेंट है उसने बनाया नहीं है, उसके बिजनेस के एम्प्लॉयज़ ने बनाया नहीं है, बाहर के किसी बिजनेस ने बना के हमको दिया है, तो उसको बोलना पड़ेगा एक्सटर्नल। फिर हमने देखा कौन से अलग अलग वाउचर्स, 3 अलग अलग चीज़ें देखी हमने। एक कौन सा? जर्नल वाउचर। इसमें मैंने आपको क्या बोल रखा है, जनरली नाम प्री प्रिंटेड रहता है, वाउचर नंबर प्री प्रिंटेड रहता है। प्री प्रिंटेड नहीं रहेगा तो रबर स्टैम्प मार के नाम कंप्लीट करके रखते हैं, और वाउचर नंबर नंबरिंग का एक मशीन आता है, कटक कटक करके वो चला दे करके, वो वाला मशीन यूज़ करके फटाफट से नंबरिंग करके रखेंगे। बाद में मतलब एक आध मिसप्लेस हो गया तो समझेगा कि एक वाउचर मिसप्लेस्ड है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर और डेट जो है वो तो हम लोग बोलेंगे नहीं वो हाथ से लिखना पड़ेगा। फिर किसको डेबिट करना है वो लिखो, किसको क्रेडिट करना है उसका नाम लिखो, किसकी वजह से हुआ वो बताओ, कितना हुआ वो बताओ, कब हुआ वो बताने का था ही, और बाद में ये ट्रांजैक्शन किसने किया,
उसको ये ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त, अनुमति, ऑथराइजेशन किसने दिया, और ये सचमुच में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये अप्रूव किसने किया, ऐसा 3 लोगों का साइन लेना पड़ेगा। ये तो था जर्नल। फिर बाद में हमने देखा कैश वाउचर। उसमें मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि अगर हमारा बिजनेस हमेशा कैश में पेमेंट कर रहा है तो जितने अलग अलग ट्रांजैक्शंस में हमने कैश पेमेंट किया हुआ है वहाँ पे बार बार जर्नल वाउचर बनाते बैठेंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट कैश, नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट कैश। तो क्यों इतना करने का, उससे अच्छा फॉर्मेट थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ऊपर कैश वाउचर लिख के रखा, मतलब अभी समझ में आई है कैश वाउचर है, इसमें गारंटी से क्रेडिट किसको पड़ेगा, कैश को ही पड़ेगा, बाकी किसी को पड़ने वाला नहीं है। फिर वो प्री प्रिंटेड रहेगा, वाउचर नंबर प्री प्रिंटेड रहेगा, पे किसको किया, पे क्यों किया, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कितना अमाउंट पे करना है, और बाद में किसने वाउचर बनाया, किसने उसको पास किया, और जिसको पैसा मिला उसने साइन किया कि नहीं किया। इतनी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेंगी। और सबसे लास्ट में मैंने आपको सिखाया टैक्स इनवॉइस। ये इंटरनल भी रह सकता है और एक्सटर्नल भी रह सकता है। इंटरनल कब होगा, जब हमने सेल्स किया रहेगा तो ये इंटरनल बन जाएगा, और जब हमने परचेस किया रहेगा तो ये एक्सटर्नल बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको रूल क्या सिखाया, कौन कौन टैक्स इनवॉइस बनाता है, जो गुड्स बेचता है वो टैक्स इनवॉइस बनाता है। फिर मैंने आपको बोला कि उसके अंदर क्या क्या रहेगा, उसका बिल नंबर रहेगा, वो भी जनरली प्री प्रिंटेड रहता है, कंप्यूटराइज रहेगा तो ऑटोमेटेड रहता है, तुमको हाथ से डालने को मिलता नहीं है। डेट तुम हाथ से डाल सकते हो। जीएसटी नंबर पे भी जनरली प्री प्रिंटेड रहेगा, क्योंकि हर बार तो चेंज नहीं होता है, वो एक बार दिया तो वही रहेगा। फिर किसको बेचा है उसका नाम लिखो, जिसको बेचा है उसका एड्रेस लिखो, क्या क्या बेचा है उनका तुम्हारे हिसाब से नाम क्या है लिखो, फिर उन सब का गवर्नमेंट ने बोला हुआ HSN का नंबर लिखो, फिर उसका रेट क्या, उसका क्वांटिटी क्या, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना, उस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर तुमने लगाया हुआ CGST का टैक्स कितना, SGST का टैक्स कितना, टोटल अमाउंट कितना, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स का, अलग अलग जो गुड्स बेचे हैं उनका सबका टोटलिंग कितना, वो अमाउंट इन फिगर्स, अमाउंट इन वर्ड्स लिखो, और बाद में सामने वालों को बता दो कि भैया अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए बैंक के डिटेल्स क्या है, आपको बैंक का नाम बताता हूँ, बैंक का अकाउंट नंबर बताता हूँ, और ब्रांच का IFSC कोड बताता हूँ, और फिर मैं साइन करके देता हूँ। इतना करने के बावजूद मैं और एक चीज़ लिख कर रखूँगा, कौन सा, E&OE। उसका मतलब क्या है, एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सपेक्टेड। मैंने आपको अलग अलग चीज़ों का फुल फॉर्म बताया अभी। एक क्या बताया, HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एक क्या बताया, IFSC मतलब क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक क्या बताया, E&OE मतलब क्या है, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। तो इतनी सब चीज़ें आज अपनी देख के हो गई है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में आपको मैं और नया चीज़ सिखाऊंगा कि रिसीट कैसे बनता है, और फिर बेयरर चेक का मतलब क्या है, और फिर ऑर्डर चेक का मतलब क्या है, और बाद में फिर क्रॉस चेक का मतलब क्या है। ये सब कल के लेक्चर में सिखाऊंगा, और थोड़ा आगे का बात भी करूंगा। कल मैं जर्नल का फॉर्मेट भी सिखाने वाला हूँ, तो कल बिना भूले आइएगा। आप भी आना है, आपके दोस्तों को भी आने को बोलना है। अगर लेक्चर सुनते सुनते नींद आ गई रहेगी, थोड़े सो गए रहोगे, तो कल फिर से एक बार सुन लेना, और शाम को कल रात को 9 बजे आ जाना। ओके, तो कल रात को मिलेंगे। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।